Namaste. So today we will talk about infertility, male and female infertility. So this is a patient of mine. She has gone through 6 miscarriages till now. She has underwent few cycles of IUI and finally she has been advised for IVF. And when after coming to us, we got done her husband's sperm analysis report, which was not done till now. And when the report came, there has been sperm agglutination seen in the report. The sperm count is very much high and there is sperm agglutination seen. So let's understand how can this be a causative factor towards infertility or creating certain abnormalities or certain issues after conception or not leading to conception or even miscarriages for that matter. Of course Ayurvedic treatment protocol हम लोग जब करते हैं तो we have to see the multiple causative factors after a proper detailed case study. लेकिन ये जो एक specific report में हमें दिखाई दिया है, that is sperm agglutination. So let's understand about this. So sperm agglutination मतलब जो sperms होते हैं, these are basically stuck to each other either at the head or at the tail. So that is so we can see sperms in clumps or we can say adhesions, they adhere together to each other. So that is called as agglutination. So sperm agglutination में sperm के जो cells हैं, these stick together. This may prevent the sperm from freely moving into the cavity, because normally after intercourse the sperm has to literally travel through the cervix, through the vaginal cavity, into the uterus and to the fallopian tubes and has to meet the egg finally. But if the sperms are agglutinated, they are clumped together or they are stuck with each other, the normal movement of the sperm is somewhere hampered and the proper function of the sperm cannot happen. The sperm may not reach there on time, or even though it reaches and even the fertilization happens, there could be certain abnormalities further after conception, like miscarriages in this case we can see. Also one more thing most important is the most of the cases of sperm agglutination, we get to see higher concentration of sperm. The sperm count is very much higher, जैसे इस report में आपको दिखाई दे रहा है. So the sperm count is also seen very much higher. So we normally जब report हमारे पास आता है तो grade 1, grade 2, grade 3 और grade 4 ऐसे इसमें वो distinguish करते हैं. So if you see this report is grade 1 report. So grade 1 मतलब क्या कि इसमें 10 sperms or lesser sperms are stuck together. Grade 2 में 10 to 50 sperms agglutination is seen, or in the grade 3 report more than 50 sperms per agglutinate is seen, like a group of 50 sperms or more is seen together in that agglutination or that clump we can say. And the grade 4 is that's gross agglutination, like all the sperms are agglutinated together, like a cluster of sperms is seen and which cannot function properly. ऐसे cases में abnormal sperms के count, even in this report if you see the abnormal percentage is more, so abnormal percentage also is seen more in such cases. So most importantly when we talk about sperm agglutination, that can be the causative factor of male infertility and leading to further issues after conception, जैसे miscarriages इस case में हमें दिखाई दिए हैं. So if we talk about the causes, the causative factors according to Ayurveda, so since I'm an Ayurvedic doctor, firstly I would talk what Ayurveda recommends and what Ayurveda text suggests. So क्यों ऐसे clumps होते हैं? Ayurveda में modern में इसको sperm agglutination कहते हैं. Ayurveda में इसे ग्रथित sperm कहते हैं. ग्रथित मतलब like a clump together when they come together. So ग्रथित शुक्र या रेतस हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं. सो आयुर्वेदा टेक्स्ट में वेरी ब्यूटिफुली इट्स डिस्क्राइब्ड, वेग संधारणात् शुक्रम वायु विहंत पथि कृच्छ्रेण याति ग्रथितम अवसादि. मतलब वेग धारण आयुर्वेदा में अधारणीय वेग मतलब सर्टन अर्जेस विच शुड नॉट बी kept holded, like यूरिन का अगर अर्ज आ रहा है तो आपने जाके मिक्चुरेशन यूरिन पास करना चाहिए. इफ़ यू हैव द अर्ज ऑफ स्नीजिंग या वॉमिट का अर्ज आ रहा है तो यू शुड स्नीज एंड वॉमिट. अगर आपको फार्टिंग का अर्ज आ रहा है तो यू शुड इमीडिएटली फार्ट. अगर आपको यौन आ रहा है तो यॉर्निंग करना चाहिए. व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर इन पब्लिक प्लेसेस, हम लोग होल्ड करते हैं. वी नॉर्मली ट्राई एंड होल्ड वेरियस अर्जेस. देयर आर मल्टीपल अर्जेस एक्सप्लेन बाय आयुर्वेदा. तो आयुर्वेद में बोला है कि जो अधारणीय वेग है
इसे धारण नहीं करना चाहिए. इफ़ यू होल्ड दोज अर्जेस देन इट कैन लीड टू सर्टन प्रॉब्लम्स इन फर्दर. सो वेग संधारणात् जिसको बोला है कि वेग जो है उसको धारण नहीं करना चाहिए. इफ़ यू हैव द अर्ज ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, इट कुड ऑल्सो बी लाइक इफ़ यू फील लाइक क्राइंग बट यू डोंट क्राई एट दैट मोमेंट. अगर आपको नींद आ रही है और आप सोते नहीं हैं, सो ऑल दिस थिंग. अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना नहीं खाते हैं. अगर प्यास लगती है तो पानी नहीं पीते हैं. सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू सर्टन इश्यूज फर्दर एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट आयुर्वेदा ऑल्सो सेज कि इसकी वजह से जो आप वेग को धारण करते हैं उसकी वजह से वात दोषा होता है और कफ दोषा होता है बॉडी में, उसका विटिएशन होता है, मतलब इम्बैलेंस होता है. और जिसकी वजह से इवेंचुअली नीचे जो शुक्र धातु है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली इज़ अफेक्टेड एंड इवेंचुअली द शुक्र मतलब जो स्पर्म है उसमें आपको एबनॉर्मलिटीज़ दिखते हैं, या जो भी एग्लूटिनेशन है या द काउंट कैन बी अफेक्टेड. सो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस डिफेक्ट्स इन द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कैन बी सीन. सो इसीलिए जो हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं वो इस पे बेस्ड होती है कि कौन से दोषाज इम्बैलेंस्ड है, कौन से धातुज इम्बैलेंस्ड है, व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स. जो लाइफ लॉन्ग जो खाना आप खाते हैं, काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू फॉलो, या जो हमने अभी देखा कि जो अधारणीय वेग है, जो वेग धारण करते हैं, अर्जेस धारण करते हैं, अगर उसकी हैबिट है, सो ऑल दिस फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. अगर कोई भी पॉजिटिव फैक्टर अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पार्टनर और द कपल, बेसिकली वी हैव टू टेल देम दैट स्टॉप यूजिंग दैट पर्टिकुलर positive factor. It could be in the form of food, it could be in the form of your lifestyle, it could be in the form of this urges जो आप urges hold करते हैं, it could be in the form of anything. So that has to be completely stopped and corrected accordingly. So Ayurveda recommends all these things. Apart from that, हम लोग जो बोलते हैं कि जो कफ और वात इन दोनों दोषों से उत्पन्न जो रेतस है, जो शुक्र है, सो उसकी दुष्टि होते हैं. इसमें क्या होता है कि जो वृद्ध कफ गुण है और उसके साथ जो वृद्ध मतलब वात के भी गुण बढ़ जाते हैं, मतलब कफ भी बढ़ जाता है और वात के भी गुण बढ़ जाते हैं. तो उसकी वजह से परिणाम स्वरूप जो रेतस है या शुक्र है उसका प्राकृत जो स्वरूप है वो बदल जाता है. उसका प्राकृत एक बहल है, मतलब एक फ्लो होता है, वो बिगड़ जाता है. या प्राकृत एक स्वरूप होता है, एक स्निग्धता होती है. आयुर्वेदा में इट्स सेड दैट देयर इज अ काइंड ऑफ स्निग्धता, एक स्टिकीनेस होता है, एक वॉल्यूम होता है स्पर्म को, वो भी बदल जाता है. that thickness we can say, and that स्वरूप is change, that एक flow होता है वो बदल जाता है. और वात दोष के कारण वो शुष्यमान होता है. शुष्यमान मतलब ड्राइनेस इज सीन बेसिकली, और उसकी वजह से वो क्लम्प हो जाता है, ग्रथित हम लोग जो बोलते हैं, या एग्लूटिनेशन फॉर्म होता है. सो वाता एंड कफा दोषास प्ले मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू स्पर्म एग्लूटिनेशन, जो आयुर्वेद में हम लोग ग्रथित रेतस या ग्रथित शुक्र बोलते हैं. सो व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द स्वरूप या जो फॉर्म होता है रेतस का, इसीलिए क्या होता है कि जो वाता और कफ की दुष्टि की वजह से जो इम्बैलेंस उसमें क्रिएट होता है, ड्राई होता है, एंड उसका एक जो फ्लो है या एक जो उसके स्टिकीनेस है, एक थिकनेस है, वो अफेक्ट होने के कारण द फ्लो ऑफ द स्पर्म इज ऑल्सो अफेक्टेड, एंड इवेंचुअली लॉट ऑफ प्रेशर हैज़ टू बी क्रिएटेड while the intercourse process as well, and इसीलिए वो शुक्र का जो नॉर्मल एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग विलयन बोलते हैं. जो विलयन होता है, डिफ्यूजन या एक डिसोल्यूशन नहीं होता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर. ऐसे केसेस में नॉन मोटाइल स्पर्म्स या ज़्यादा एबनॉर्मल स्पर्म्स भी बहुत ज़्यादा करके दिखते हैं. व्हेन इट कम्स विद द अदर मॉडर्न पॉजिटिव फैक्टर्स जो मॉडर्न में पैथी में एक्सप्लेन किए हैं, सो देर आर सर्टन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे से विच में ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है अगेंस्ट द स्पर्म, लीडिंग टू क्लम्पिंग टुगेदर. या सर्टन जेनेटिक फैक्टर्स में ऑल्सो बी इन्वॉल्व या may also influence towards certain abnormalities in the semen report. इसके अलावा environmental जो फैक्टर्स हैं या certain medications हैं उससे भी अफेक्ट कर सकता है. इसके अलावा
एज आई जस्ट मैंशन कि जो आपके डाइटरी रेजिम है, लाइफस्टाइल रेजिम है, सो वाता और कफा ये दोनों जो दोषाज हैं उनको एग्रीवेट करने वाले अगर फैक्टर्स बहुत आते हैं आपकी लाइफस्टाइल में या आपके खान पान में, तो भी आपको दिखता है. स्पेसिफिकली इट्स सेड इन आयुर्वेदा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रुक्ष मतलब ड्राई फूड कंज्यूम किया, रुक्ष ड्राई फूड, डिहाइड्रेटेड फूड आइटम्स. आई गिव यू अ वेरी क्विक एग्जांपल. आजकल खाकरा बहुत पॉपुलर हो गया है. इट इज़ अ डिहाइड्रेटेड ड्राई फॉर्म ऑफ फूड. देन देयर इज मुरमुरा या फुटाना, हम लोग जो फुटाने खाते हैं, तो दीज आर ऑल ड्राइड फॉर्म ऑफ फूड. या नाचोज है, चिप्स है, दीज आर डिहाइड्रेटेड ड्राई फॉर्म ऑफ फूड आइटम जिसे हम लोग रुक्ष कहते हैं. तो उसका ज़्यादा कंजम्पशन अगर करते हैं उसकी वजह से भी होता है. देन सेकेंडली, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ बिटर टेस्ट फूड या एस्ट्रिंजेंट ज़्यादा खाते हैं, टू मच ऑफ सॉल्टी सावर फूड खाते हैं, स्पाइसी या गर्म चीज़ें खाते हैं पोटेंसी में, दैट टू ऑन अ डेली बेसिस, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट. टॉकिंग अबाउट टू मच ऑफ सावर, तो स्पेशली साउथ इंडियंस में इमली मतलब टैमरिन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है. सो लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आप बार बार इमली खाते हैं तो इट इज़ गर्म इन पोटेंसी एज वेल एज इट इज़ सावर, एंड दैट मच एक्सेसिव सावरनेस जिसको हम लोग क्षार कहते हैं कैन लीड टू सर्टन इम्बैलेंसेज इन योर बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट द फूड आइटम्स दैट वी कंज्यूम, तो ये डेली बेसिस पे, मतलब इससे नहीं है कि वंस अ वीक आप खाते हैं तो कोई परिणाम नहीं होता है, बट आप डेली बेसिस पे, लॉन्गर ड्यूरेशन पे, ऑल्सो टू मच ऑफ फर्मेंटेड फूड कंजम्पशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे इडली डोसा है तो ज़्यादा ओवर, या ढोकला है फॉर दैट मैटर, या टू मच ऑफ पल्सेस जैसे मटकी, राजमा, छोले, चना मतलब हरभरा, ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. अरहर की दाल जो होती है, तुअर दाल स्पेशली, ये बहुत गर्म होती है पोटेंसी में, एंड इसीलिए ऑन अ लॉन्गर डेली कंजम्पशन या लॉन्गर ड्यूरेशन कंजम्पशन से आगे चल के ऐसे परिणाम आपको दिख सकते हैं. तो ये सब मॉडरेट करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैविंग अ बैलेंस्ड मील. अपार्ट फ्रॉम दैट, फियर, एंगर, इरिटेबिलिटी, टू मच ऑफ वेट लॉस सडनली, या जैसे मैंने अभी बोला कि होल्डिंग नेचुरल अर्जेस, जो आपके नेचुरल अर्जेस हैं वो ज़्यादा टाइम होल्ड करने से भी आपके दोषा धातु इम्बैलेंस होते हैं, एंड इवेंचुअली इट कैन लीड टू प्रॉब्लम इन टू योर बॉडीली जो आपके पैरामीटर्स हैं उसमें इम्बैलेंसेस होते हैं, एंड आपको ऐसे जो रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं वो दिखाई देते हैं. तो व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा हैज़ वंडरफुल ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स ट्रीटिंग मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी. वी डू वेरियस पंचकर्मास. पंचकर्मा में 5 प्रकार के कर्मास होते हैं. पंच मतलब 5 एंड कर्मा मतलब थेरेपीज, बट नॉट ऑल 5 कर्मास आर रिकमेंडेड टू एवरी इंडिविजुअल हु वॉक्स इन टू द क्लिनिक. हर एक पेशेंट को उनके दोष धातु के हिसाब से, उनकी जो भी लक्षण है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, नाड़ी है, उस हिसाब से वी हैव टू रेकमेंड पंचकर्मास टू देम एंड ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंगली. तो पंचकर्मास हम लोग करते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, नस्यम, शिरोधारा. Apart from that, internal medications, but most important is the lifestyle and dietary corrections, because ahar, nidra, it follows in this sequence. So diet is the most important thing to be followed as per Ayurveda. Diet है, उसके बाद आपका जो sleep pattern है, sleep routine है, उसको correct करना है. And then apart from that, certain other corrections are done with the help of medications and panchakarma. And then slowly and steadily the corrections are seen, and then the conception can happen, and then eventually there will be no complications post conception.